common type of reagents. Dr. Saurabh Muktibodhi is here to make you understand the importance of lab reagents. So, shall we begin? The agenda for the type of reagents that we have chosen is the types of acid bases, to understand the basic principles of acid bases and their comparative strength, एसिड और बेसिस की तुलनात्मक अध्ययन, कौन से रीजन प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट्स होते हैं, अवक्षेपण करने के काम में आते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट्स एज वेल एंड विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रीजेंट्स, लेकिन वो अगले वीडियो में रहेगा. तो जो हम समझते हैं लैब रीजेंट्स को, हम मोटे तौर पर ये 3 प्रकार के रीजेंट्स में बांट चुके हैं या बांट सकते हैं. तो लेबोरेटरीज के जो हमारे काम होते हैं उसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. वंस वी डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड नो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स, इट डज अ ग्रेट डील ऑफ जॉब फॉर अस. हमारे लिए बड़ा काम हो जाता है, हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं यदि इस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. तो हम चलते हैं आगे और एक इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूं कि आपको एक इंसाइट डेवलप करने के लिए आपको ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए. इसको पॉज करें जब आपको आवश्यकता हो, आगे पीछे करें एंड आप अपने कोर्स को एंजॉय कीजिए. सो ट्राई टू डेवलप एन इंसाइट ऑफ द सब्जेक्ट, वॉच केयरफुली द वीडियोज, पॉज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर and enjoy the course. That's it. Lab reagents are characterized by their behavior. Develop the wisdom to understand them, such as acidic, basic, redox or precipitating behavior. Many times this helps to predict products of reactions. बहुत सारे जो students होते हैं, particularly 11वीं और 12वीं, 11th, 12th students and then who are graduating from various universities and colleges, they gradually try to understand what they are doing in laboratory. Laboratory work is not merely mixing of things or reagents. It is to understand the basic principle, and that is why practicals have been incorporated into syllabus of many universities and school education. तो ये जो practicals करवाने का मोटो है, उद्देश्य है, ताकि आप laboratory के जो reagents हैं उनके स्वभाव को समझें. And once you develop this, you can actually do a lot of research in coming time. पहली बात मैं बहुत briefly छोटी छोटी बात पढ़ना चाहूँगा. This is not a proper platform to study the types of acid bases or redox reagent, but I'm just classification. The earlier classification जो Arrhenius का था उसके अनुसार acid वो substance है जो H+ ion देता है और base वो substance है जो OH- ion देता है. So acid gives H+ ion, base gives OH- ion, and when they react, H+ ion when reacts with OH- ion, then heat is produced, water is formed, a new bond is formed. जब नया bond बनता है तो heat release होती है, और ये देखने में आया है कि this heat is always constant, 13.7 kilocalorie per mole for a strong acid and a strong base. This is always true for a strong acid and a strong base. However, this may not be predictable when counter acid is weak or base, but for a strong acid and base it is always 13.7 kilocalories per mole, because a new bond is formed and that is due to formation of water molecule. Rest of the things, as you can see, is still there in ionic state, aqueous state, hydrated state. And this 13.7 kilocalories of heat is known as the heat of neutralization, that you know in your classes, undergraduate classes also. When you talk about limitations of Arrhenius concept, the Arrhenius concept is still very good, not a bad idea indeed. But it is unfortunately applicable to aqueous solutions only. And all those substances which do not have H+ ions or OH- ions yet display acidic or basic behavior cannot be explained by this theory. वो सभी पदार्थ जो कि H+ ion या OH- ion नहीं देते हैं, बावजूद इसके वो अम्लीय और क्षारीय स्वभाव या व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, आर्हेनियस के कंसेप्ट में समझाना थोड़ा मुश्किल है. हालांकि दूसरी थ्योरी भी हैं, जैसे एक ब्रॉन्सन लॉरी कॉन्सेप्ट है.
ये कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस की बात की जाती है। एसिड वो पदार्थ है जो H+ आयन देता है, आर्सेनिक भी कहता है, लेकिन यहाँ हम कहते हैं बेस वो पदार्थ है जो H+ आयन लेता है। नाउ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी। प्रोटॉन देने वाला एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला बेस, और प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी के एडवांटेज है वी कैन कंपेयर द एसिडिटी और बेसिसिटी इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्जुगेटेड बेसिस और एसिड्स। अगर एसिड है तो उसका कोई कॉन्जुगेटेड बेस होगा, और कोई बेस है तो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। एक और यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करता है, और ये कहता है लेविस कंसेप्ट दैट बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर while an acid is a substance which accepts an electron pair. So this is nothing but electron pair donor acceptor theory, more universal because all things can be explained in terms of electronic nature, and therefore less concept is more popular and more universal. Now, at this point of time, I would like to make you understand that we must know a relative strength of acids. जब हम एसिड्स की कोई बात हमारे सामने आती है तो क्या हम ये समझ पाते हैं कि ये एसिड ताकतवर है या नहीं है, और अगर ताकतवर है तो दूसरे एसिड्स के मुकाबले कितना ज़्यादा ताकतवर है और कितना कम ताकतवर है। ये जो कंसेप्ट है ये हमको हमारे माइंड में बिठाना होगा, हमारे दिमाग में बिठाना होगा। वी हैव टू डेवलप दिस कंसेप्ट इन ऑर्डर टू वर्क आउट मेनी थिंग्स इन प्रैक्टिकल्स एज वेल। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम समझें कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कुछ एसिड्स की HCl4, HI, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। फिर कुछ एसिड्स हैं लाइक प्रोटोनेटेड वाटर और अल्कोहल और नाइट्रिक एसिड, और फिर कुछ वीक एसिड्स हैं लाइक RCOH, अमोनियम आयन एक्सेट्रा। फिर कुछ एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं और इथिलीन टाइप कंपाउंड्स, और आखिरी में ऐसे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़े हैं, अमोनिया या फिर sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन, जिनका हाइड्रोजन निकालना बहुत मुश्किल है। So this is a broad way, you talk about mineral acids, then you talk about the organic acids, then you talk about say some hydrogen that is related to or directly connected to an electronegative atom. Then we talk about a hydrogen that is connected to a triple bond, और an active hydrogen या ऐसा हाइड्रोजन जो sp3 कार्बन से जुड़ा है। ये एक मोटी स्केल है, इट्स अ रफ स्केल। इट रेंजेस फ्रॉम -10 गोज टू pK इक्वलेंट टू 30 और 40। ये स्केल अगर हम हमारे दिमाग में है तो हम इसके जो सेपरेटिव पार्ट है उसके बारे में हम थोड़ी सी सोच सकते हैं। जैसे अब हम लेबोरेटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं pK -10, उसके मुकाबले HBr, हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड -9, बट वी यूज HCl in the aqueous -7 state. Now we have HF, which we do not use, but it is not a very strong acid that compared to HCl. It's a pK 3, and we do use acetic acid. हम acetic acid का निश्चित रूप से उपयोग करते हैं, pKa लगभग 4 और 5 के बीच में है। तो अगर हम एक तरफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें -10, HCl की बात करें -7, और एसिटिक एसिड की बात करें तो +4, ये जो रेंज है, ये रेंज हमको समझना होगा ताकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एक अंतर को अच्छे से डेवलप कर पाए, समझ पाए। जब हम बात करते हैं कुछ बेसिस की, तो मैं बेसिस के जो कॉन्जुगेटेड एसिड है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो sp3 कार्बन ब्यूटाइल लिथियम, उसका pK 50 है, तो 50 है, इसका मतलब इसके हाइड्रोजन को रिमूव करना सबसे मुश्किल है। सो अगर वो रिमूव हो जाता है, दैट वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। Similarly, we have another thing that is sodium amide. We use in laboratory around say 38 of pKa. Sodium hydride NaH, Na plus and H2 minus. H minus is a very strong base. The another strongest base. Now we have potassium tertiary butoxide, a bulky base, एक मोटा बेस है जिसके अंदर वो tertiary butoxide आयन है। pK 19, हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे खासे बेसिक सब्सटेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम इथॉक्साइड pK 16 है, इथेनॉल का pK भी 16 है। सो इसका अगर इथॉक्साइड जो इसके स्केल में कंपेयर करें, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं ब्यूटाइल लिथियम, सोडियम अमाइड, सोडियम हाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ये जितने भी बेसिस हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इसलिए हम इनको केवल कुछ खास ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, रूटीन में लैब रीजन की तरह इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब हम बात चलाते हैं करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये ज़रूर हमारा लेबोरेटरी रिएजेंट है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और इसकी जो स्ट्रेंथ है आप इसको कम मत समझिए। जितना सल्फ्यूरिक एसिड डेंजरस हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डेंजरस हो सकता है। Then another substance that we use is sodium carbonate, sodium bicarbonate, and then sodium acetate. Yes, sodium acetate is relatively a poor base, but still you can have a comparison minus 15.7, 10 to the power minus 3. So when you say pK, that is minus log of Ka. So that is relatively a very high degree of differences between the corresponding bases. So this is how one should develop the idea about the comparative strength of acids and bases. I think I will stop this video. In the next video, we'll be talking about precipitating agents and, of course, oxidizing and reducing agents. Thanks for watching the video.